Yes, Namaskar everyone. Now we'll continue this chapter of exercise 12.5. 12.5 is that from question 1 to 7. The area of circle. Area of circle is equal to pi r square. Area of circle is equal to pi r square. Okay, this is only thing is that remember that pi r square. Area of circle is equal to pi r square. Okay. Now question 1. Simple one formula is using area of circle is equal to pi r square. 1. First question is that find the area of circle of radius 21 centimeter. R is equal to 21 centimeter. Area is equal to pi r square. What is the value of pi? 22 by 7. What is the value of r? 20. Okay. 7 3s are 21. 3 2 just 6. 3 2 just 6 into 21. What is the answer? Answer will be 66. 21, 6 1 जा 6 2 जा 12, 6 1 जा 12, 6 8 3 1 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22 by 7 into 21 into 21. What is the answer? 1386. Question number 2. Find the circumference of the circle having area 154 square. Circumference is equal to 2 pi r, but we don't know what is the value of r. So first, by using area, we find out the radius. Okay. So question number 2. Area is equal to 154. Pi r square is equal to 154 centimeter square. Then r square is equal to 154 by pi. What is the value of pi? 22 by 7 multiplied by 7. Okay. 11 2s are 11 1s are 11, 11 4s are 2 1s are 2, 2 7s are 14. 7 into 7, 49. R square is equal to 49. R is equal to 7 centimeter. Now we will find out the radius. Then we will find out the circumference. What is the value of formula for circumference? 2 pi r. 2 into 22 by 7 into 7. 7 7 cancel. 44 centimeter. Circumference is equal to 2 into 22 is equal to 44 centimeter. Okay. Now question number 3rd. Question number 3rd is that the circumference of the circle. Circumference is given. Question 3rd में क्या है? Circumference is equal to 2 pi r is equal to 22 centimeter. R is equal to 22 by 2 pi. 22 divided by 2 into 22 into 7. 20 20 get cancel. 7 by 2 is equal to 3.5 centimeter. Radius is equal to 3.5 centimeter. Now we will find out the area. Area is equal to pi r square 22 by 7 into 3.5 into 3.5. 7 5s are 35. What is the answer? 5 2s are 10. 5 2s are 10. 11 into 3.5. 11 5s are 55. 11 3s are 33 plus 5. 38. The answer will be 38.5 centimeter square. Area is equal to 38.5 centimeter square. Okay. Now question 4. Question 4 is that what is the question number 4? A wire bent in the form of square encloses an area of 121 centimeter square. ओके. नाउ एक वायर है, उस वायर को हमने बेंड किया है, तो वो एरिया फाइंड आउट, एरिया गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है साइड. तो साइड इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, देन फाइंड आउट साइड. ओके. अब इसमें क्या है? इफ द सेम वायर इज रिबेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, तो जब हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उस एरिया को यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर. पेरीमीटर फाइंड आउट करने के बाद जो आंसर हो गया वो हो गया आपका सर्कमफ्रेंस. देन सर्कमफ्रेंस से हम फाइंड आउट करेंगे उसकी रेडियस. ठीक है. व्हाट एरिया विल, फिर उसके बाद में हम उसका फाइंड आउट करेंगे एरिया. ठीक है. क्वेश्चन में काफी सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, बट डोंट वरी. एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड. इट मीन्स देयर साइड स्क्वायर. क्या होता है? साइड स्क्वायर.
तो एरिया क्या है आपका इसमें गिवन 121। 121 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, तो साइड की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 120। जब यहाँ से स्क्वायर रूट हट गया, स्क्वायर हट जाता है तो ये स्क्वायर रूट लग जाता है इसका साइड। अब 121 मीन्स 11 इंटू 11 इज इक्वल टू साइड, तो साइड इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ठीक है, 121 किसका होल स्क्वायर है? 11 का। या फिर आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, 11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, ऑन कैंसिलिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, साइड इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपके पास साइड हो गया। अब आप फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। So perimeter 4 into 11, what is the answer? 44 centimeter. This is circumference of the circle. Circumference of the circle. ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो गया? सर्कमफरेंस सर्कल का। तो अब इससे हम क्या फाइंड आउट करें? इससे रेडियस। सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, आर इज इक्वल टू सी अपॉन 2 पाई। व्हाट इज द सी? 44 डिवाइडेड बाय 2 into 22 into 7, 21 2s are 21, 2 cancel, 7 centimeter. R is equal to 7 centimeter. Then area of circle is equal to pi r square. What is the value of pi? 22 by 7 into 7 into 7, 7 and cancel. 7 2s are 14, 154 centimeter square. Area क्या हो गया इसका? 154 centimeter square. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5। पहले हमने क्या किया? एरिया से साइड निकाल लिए, साइड से फिर हमने पेरीमीटर निकाला, पेरीमीटर हो गया सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस यूज करके रेडियस निकाले, रेडियस फाइंड आउट करने के बाद एरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। एक सर्कल है, दूसरा सर्कल है। ठीक है, अब ये है आपका 6 सेंटीमीटर और ये है आपका 8 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें करना क्या है? फाइंड आउट क्या करना? फाइंड एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ बाउंड बिटवीन सर्कल्स ऑफ टू। कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट वी फाइंड आउट दिस एरिया, देन फाइंड आउट दिस एरिया एंड माइनस। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एरिया A1 इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर, R1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 22 by 7 into 6 into 6। ठीक है, या फिर हम इसे कर देते 20 by r स्क्वायर, R1 स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल A2 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ। एरिया A इज इक्वल टू A1 A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1 पाई R1 स्क्वायर। एरिया फाइंड आउट करना है ना हमें। हाँ, 6 and 8। व्हाट इज द एरिया? पाई R1 स्क्वायर माइनस 8 8 64। क्वेश्चन नंबर 5। नहीं, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ बाउंड बिटवीन सर्कल्स ऑफ। ये सर्कुलर पाथ का दोनों का फाइंड आउट करना है, तो हमें इसे प्लस करना होगा। कैसे? एरिया ऑफ एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें फाइंड आउट करना है इसका रेडियस। ठीक है, तो let the radius of required circle is, let the radius of required circle is r, then a is equal to pi r square. On equalizing this, pi r square is equal to pi r1 square plus pi r2 square. ठीक है, पाई पाई गेट कैंसल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 36 प्लस 64 100। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर
r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो जो हमें रिक्वायर्ड, जो ये इस एरिया का रिक्वायर्ड सर्कल निकालना है, तो हमारे पास में इसकी रेडियस क्या होगी 10 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका एरिया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। Then area of circular path, area of circular path is equal to pi r square. What is the r? 22/7. Area of circular path is equal to pi r2 square minus pi r1 square. Pi common, r2 square minus r1 square. 22/7. r2 square means 8 square minus 6 square. 22/7 into 64 minus 36. 22/7 into 28. 7 4s are 20. 8 4 2s are 8. 4 2s are 8. 88 सेंटीमीटर। क्या आंसर है 88 सेंटीमीटर। तो सिंपल है, आप इसे रेडियस फाइंड आउट ना भी करें, ये आंसर आप ना भी करें, ये आंसर नहीं भी करें, तो आपका डायरेक्ट आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। हमने r1 लिया है 6 और r2 लिया है 8। ठीक है, तो कॉमन लेने के बाद आपका आंसर हो गया 88 सेंटीमीटर। तो रेडियस फाइंड आउट करने की वैसे कोई नीड नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6। आपका ये आंसर है 140 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगी 70 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये है आपका 7, तो ये हो गया आपका 77। ये कितना हो गया 77। तो r1 हो गया आपका 70 सेंटीमीटर, r2 हो गया 70 + 7 77 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, द डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन इज ऑन इट्स आउटसाइड देयर इज अ रोड 7 मीटर वाइड। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। एरिया ऑफ द रोड मीन्स ऑब्वियसली माइनस कर देंगे एरिया ऑफ द रोड के लिए, और फिर हम फाइंड आउट करेंगे क्या, उसका कॉस्ट। ओके, so pi r1 square is equal to pi r2 square. Find out the values. So area of circular area of the road is equal to pi r2 square minus pi r1 square. Pi r2 square minus r1 square, 22/7. r2 is 77 whole square minus 70 whole square. ठीक है, we use the identity of this a square minus ab b square, a minus b, a plus b. 77 plus 7, 77 minus 70. 22/7 into 7 7 14, 147 into 7, 7 7 get cancelled. 22 into 147, multiply 22 by 147 by 22. 2 7 are 14, 2 4 are 8, 9, 2 1 are 2, 4 9 2 प्लस कर दिया हमने 13 12 3 2 3 4. What is the answer? 3 2 3 4. So area will be 3234 centimeter square. What is the area of the path? 3234 centimeter square. Now we will find out the cost of this road. Cost find out करना है. So find the cost of find the cost of leveling the road. The cost is equal to what is the cost? 5 into 3234 is equal to rupees. 5 4s are 20, 5 3s are 15 plus 2 17, 5 2s are 10, 10 plus 1 11, 5 3s are 15, 15 plus 1
1617. दिस इज योर आंसर. हमने क्या किया, पहले हमें फाइंड आउट करना था क्या, एरिया ऑफ पाथ. एरिया ऑफ पाथ हमने फाइंड आउट किया, देन वी मल्टीप्लाई दिस बाय 5. तो ये हो गया आपका कॉस्ट 16,170. ठीक है. Now last question of this exercise, question number 7. Okay, question number 7 is fine. This is, what is this, 22 meter and this is 8 meter. ठीक है. अब क्या करना है, इन द मिडल ऑफ द राउंड अबाउट ऑफ रेडियस 22 मीटर देयर इज अ सर्कुलर टैंक ऑफ रेडियस 8 मीटर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द रिमेनिंग पोर्शन एट द रेट ऑफ 6. रिमेनिंग पोर्शन के लिए आपको बताना है कि क्या आंसर होगा. सो फर्स्ट वी फाइंड आउट pi r1 square, pi r2 square, then we माइनस कर देंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से. सिंपल है. r1 square, r1 is equal to 8 मीटर, r2 is equal to 22 मीटर, एरिया is equal to pi r2 square minus pi r1 square. pi r2 square means 22 square minus 8 square. 22 by 7 into 22 plus 8 into 22 minus 8. 22 by 7 into 30 into 12 minus 4, 40. 40? Yes. 12 minus 8. 4, 40. 7 2 is 40, 2 3 is 6, 22 into 60, 0, 6 2 is 12, 13. आंसर क्या हो गया, 1320. तो अब ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर. कॉस्ट निकालना है. द कॉस्ट इज इक्वल टू, कॉस्ट किससे निकालना है, 6 into 1320 रुपीज. 60, 6 2 is 12, 6 3 is 18 plus 1, 19, 6 1 is 6, 7,920. 7,920. Okay. Now we completed this chapter, exercise 12.5 up to question number 7 only, and now we completed our this chapter and complete our course. Okay. Now we will start our revision in next lecture. Okay. Thank you.